I hope you are enjoying the final day of Earth, a Culture Fest as the initiative. We'll be actually building the crescendo gradually with every step. We talk about something which is extremely pertinent now. We talk about the rise of the mammoths called the BJP. In the last 5 years, the Bharatiya Janata Party has undergone a massive transformation and is today the country's most formidable political force. The party won the 2014 general election with a convincing majority under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, who assumed power in May 2014. It is in power in 20 states, either on its own or with its allies. This rise can be attributed, this ascendance can be attributed to so many factors and so much of the cross currents of factors that goes on in the country's politics. We will investigate all of that in this session, and I'm sure it's going to be one of the most insightful sessions of this season of Earth, ladies and gentlemen. On our panel, we have Bhupender Yadav, who's a renowned politician, currently serving as the Union Cabinet Minister for Ministries of Environment, Forest and Climate Change, and for Labour and Employment. Ladies and gentlemen, let's welcome Bhupender Yadav, who's also co-authored several books, including Supreme Court on Forest Conservation, along with Ritwik Datta, and the rise of the BJP, with the renowned economist Ila Patnaik, who's with us currently here. Ladies and gentlemen, let's welcome Bhupender Yadav. We have with us Ila Patnaik, who served as the Principal Economic Advisor to the Government of India. She's an economist and currently playing a key role in shaping the future of the young minds at the National Institute of Public Finance and Policy. She's co-authored the book, The Rise of the BJP, The Making of the World's Largest Political Party, with Bhupender Yadav, a senior member of the BJP and Union Cabinet Minister for 2 ministries. Ladies and gentlemen, let's welcome Ila Patnaik on stage. Kojo. In conversation with Ilaji and Bhupenderji is a friend, Arjun Singhadian, who's an established author, currently working as an academic and policy professional out of offices in Haryana and Delhi. Ladies and gentlemen, he's also closely associated with projects like Rath Foundation, Indic Academy, and many others. So, without much ado, let's understand the ascendance. Let's find out about the ascendance of the BJP, the making of the world's largest political party. Thank you very much. सभी भारतवासियों को और सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। इला मैम, भूपेंद्र यादव जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत किताब लिखी है आपने। एंड जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये प्रश्न बड़े सारे होते हैं कि पार्टी कैसे, भारतीय जनता पार्टी कैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, क्या उसकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर उसकी क्या सोच है, समाज के ऊपर उसका क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे वो डेवलप हुआ है ओवर द इयर्स। तो इस तरह के बड़े प्रश्न पब्लिक लाइफ के अंदर आते रहते हैं, परंतु कोई एक इस तरह की पुस्तक नहीं आ पाई है जो ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सटेंड माय बेस्ट विशेस एंड कांग्रेचुलेशंस मैम फॉर दिस वंडरफुल बुक। आई वुड लाइक यू टू रेज इट फॉर द कैमराज and our audience who's watching us from all over. Ma'am, since seasons elections का है, आप सबसे पहले तो ये बताइए ये गठबंधन कैसे हुआ? You are a policy professional, you are a professor and academic and have spent all your life working in economic policy. And in contrast, your co-author, the Minister Bhupender Yadav ji, he has for long been an organization man in the party. तो ये गठबंधन कैसे हुआ? In addition to being an organization man, वो राज्यसभा में MP हैं और उसमें काफ़ी सारी ये जो, क्योंकि वो लॉयर भी हैं, तो काफ़ी सारे जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनती हैं, फाइनेंशियल
रिलेटेड बिल्स की, जैसे FRDI बिल है, IBC, ये कई बिल्स की, उसके वो चेयरमैन रहते थे। और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में प्रोफेसर हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का थिंक टैंक है। तो हम सरकार के साथ और उससे ज़्यादा पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के सामने हम जाके बिल्स में मदद करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। तो हमारा उनके साथ उस प्रोसेस में जाना हुआ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड नहीं थी, तो इसलिए सिर्फ अपनी एकेडमिक प्रोफेशनल रोल में उनके साथ इस पर इंटरेक्शन हुआ। फिर आगे बात करते करते नहीं, फिर आगे हाउ डिड दिस जर्नी हैपन कि आपने किताब के ऊपर क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप डिफरेंट कमिटीज़ के अंदर पॉलिसी रिलेटेड डिस्कशंस होती थी, पर एक बुक के लिए, और वो बुक एक यू आर ऑल्सो a graduate, I mean you did your studies at JNU also. मैं JNU से हूँ। So JNU से होते हुए, you know, everybody, I think the audience is well aware of the conversations around JNU and the Bharatiya Janata Party. So how is it that how has it happened that an economics professional turned its way towards writing about the party? See, it's also economic policy gets made by governments that have political parties that are actually making decisions. Okay? So one of the things when you work on economic policy, you realize कि sometimes कोई चीज़ आपको लगता है as an economist लगता है कि बहुत अच्छी थी and it should have been pushed through, पर नहीं होती क्योंकि उसका पॉलिटिक्स सही नहीं है। इवन दो यू माइट हैव ऑल द आर्ग्यूमेंट्स कि ये होना चाहिए, तो पॉलिटिक्स समझना एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अगर आपने बहुत वक्त बिताया हो इकोनॉमिक पॉलिसी करने में, और कभी सक्सेसेस होते हैं और कभी फेलियर्स होते हैं एज अ पर्सन, एज अ पॉलिसी वॉन्क, एज अ पर्सन डूइंग इकोनॉमिक पॉलिसी। तो उसमें आई थिंक मेरी नेचुरल क्यूरियोसिटी, एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम JNU वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एवरीबडी कमिंग फ्रॉम JNU इज़ नॉट अ लेफ्टिस्ट। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी एक्चुअली वो मेरे ही सेंटर से हैं और मेरी ही सीनियर रही हैं, उनका मास्टर्स भी सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग से ही है। तो वो जो क्यूरियोसिटी आती है, वो जो समझने की इच्छा होती है कि जिस पे बुक्स भी नहीं मिलती हैं, बीजेपी पे अगर सिर्फ पढ़ कर के सारे एस्पेक्ट्स को समझ लिया गया होता तो शायद ये वेंचर नहीं होता। एब्सोल्युटली। सो मैम, सिंस आपने इकोनॉमिक्स की बात की, जब देश आज़ाद हुआ था 47 में, सो 50s 60s 70s का जो ईरा है, उसके अंदर कंसिस्टेंटली एक इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ था कि देश को इन्हीं पॉलिसीज़ पर और इन्हीं पॉलिसी डायरेक्शंस पे काम करना है। जो बुक के अंदर भी आपने अच्छे से लिखा है और आपने उन डॉट्स को भी अच्छे से कनेक्ट किया है कि 50-60s में क्या था और उसके अगेंस्ट क्या एक ओपिनियन डेवलप होना स्टार्ट हुआ, जो धीरे धीरे पार्टी की भी इकोनॉमिक पॉलिसी शेप किया। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सभी दर्शकों के लिए 50, 60, 70s का वो जो ईरा है, उसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी या एक जनरल हमारी सोशल जो डिस्कॉर्स है, उसके अंदर कौन कौन से थॉट प्रोसेसेस है, कौन से डायरेक्शन, कौन कौन से थॉट्स थे एंड कौन कौन से मूवमेंट्स थे जिन्होंने धीरे धीरे बीजेपी को वो डायरेक्शन देना स्टार्ट किया जिस डायरेक्शन में बीजेपी आज है। तो पहले हम शुरू करें कि उस समय देश में क्या पॉलिसीज़ फॉलो की जा रही थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू का जो टिल्ट हुआ वो हुआ टुवर्ड्स द सोवियत मॉडल। महालनोबिस मॉडल भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स उसको महालनोबिस मॉडल से भी जानेंगे। महालनोबिस फेल्डमैन मॉडल, वो जो कि प्लानिंग, स्टेट प्लान करे और 5 ईयर प्लान्स बनाए, गवर्नमेंट प्लान करके प्लान्स बनाए और प्रोडक्शन में व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ इट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, who will produce, what price it will sell at, सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट बनाए। तो ये पर्टिकुलरली इन द कमांडिंग हाइट्स जिसको कहते हैं, बड़े बड़े स्टील मिल्स, तो उसी पीरियड में BHEL बनाए, चिमटी बना, सेल बना, तो बहुत बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कि
जिनकी ऑलमोस्ट या तो मोनोपोली थी नहीं तो डोमिनेंस थी। सिमिलरली बैंकिंग में भी, क्योंकि आपके अपने ही सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पैसा देना है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड है, उनको पैसा देना है, तो द एंटायर मॉडल वाज बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड दैट इज़ व्हाट वाज गोइंग टू पुश ग्रोथ। अब हम जब उसका बीजेपी में राइटिंग्स देखते हैं तो हमने जैसे किताब में शुरुआत से बीजेपी को जितने राइटिंग्स को देखा पढ़ा तो बीजेपी का ये एंगल था कि वी डोंट वांट मोनोपोली आइदर बाय द स्टेट और बाय कैपिटलिज्म, वी हैव टू हैव अ थर्ड पाथ। अब वो थर्ड पाथ अगर आप देखें कैसे इवॉल्व होता है, वो थर्ड पाथ फंडामेंटली इस ऐसे इवॉल्व होता है कि आप मार्केट्स को फंक्शन करने देते हैं और साथ में सरकार का जो रोल होता है वो ये होता है कि जब मार्केट फेलियर होता है जिस या मोनोपोली बन जाती है तो मार्केट ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि मोनोपोलिस्ट आपको ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो आप उनको रेगुलेट करते हैं। आप पब्लिक गुड्स बनाते हैं जहाँ पे मार्केट नहीं चलता, जहाँ पे एयर पोल्यूशन फॉर एग्जांपल या इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, तो उसमें जब मार्केट डजंट फंक्शन, जिसको मार्केट फेलियर कहते हैं, वहाँ पर सरकार स्टेप इन करती है। तो अगर आप ये एवोल्यूशन देखेंगे, भूपिंदर जी आ गए हैं तो उस एवोल्यूशन में जो कंटिन्यूअसली डायलॉग और डिस्कशन चला वो रिफ्लेक्ट होता है कि कैसे बीजेपी का जो, तब बीजेपी नहीं, जनसंघ का और उनके लीडर्स का वर्ल्ड व्यू, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक फिलॉसफी नेहरू से हटकर बना और धीरे धीरे उसने डायरेक्शन बनाया, धीरे धीरे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा। ठीक है। कनेक्शन ओके, एनीवे, सो Anyway. मैम, तो ये बात आपने जैसे बताई, बट क्या कोई ऐसे की इंसिडेंट्स थे या की पॉइंट्स थे कि जनसंघ के अंदर डेलिब्रेशन से ये डिसाइड हुआ कि जो थॉट प्रोसेस हो रहा है, जो नेशनलाइजेशन, जो मोनोपोलीज जनरेट कर रहे हैं, उसके बीच में वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का डिस्कशन क्या जनसंघ के अंदर होता रहता था, और क्या धीरे धीरे फिर उन डेलिब्रेशंस के बेसिस पे इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड हुई? देखिए, जब भी कन्वेंशन होती थी, जब भी मीटिंग्स होती थी, तो हम जो जैसे रेजोल्यूशंस दिखाएं, हर बार ही रेजोल्यूशंस होते हैं इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक रेजोल्यूशंस तो हर बार ही होते हैं। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि देखते हो आप कि क्या हो रहा है देश में, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी और किस तरह उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं। माननीय भूपेंद्र यादव जी को नमस्कार। आपसे ये प्रश्न है, अभी हम 50, 60, 70s के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आपने किताब के अंदर अलग अलग घटकों के अंदर वो एवोल्यूशन ज़रूर अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, पर मैं चाहूँगा सभी दर्शकों के लिए, जो 50, 60s में एक जो जनसंघ के अंदर जो एक एवोल्यूशन हो रहा था, और कई ऐसे किस्से कहानियाँ हैं जो कॉन्शियसली अगर लोग गूगल करेंगे तो शायद ज़रूर समझ पाएंगे, परंतु इसके बारे में बोला और लिखा नहीं जाता। जैसे कश्मीर पॉलिसी इवॉल्व होने के पीछे शायद एक कनेक्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भी है। सो मैं चाहूँगा कि उस थॉट को, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है कश्मीर में, या दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने स्टार्टिंग के अंदर ही जनसंघ को एक डायरेक्शन दिया जिस वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इतनी इवॉल्व हो पाई है और फाउंडेशन सॉलिड किए, उसके बारे में आपसे प्रश्न है, उसके बारे में कुछ बताइए। पहला तो मैं नहीं मानता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जनसंघ को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो रिजाइन करा था नेहरू जी के मंत्रिमंडल से, वो लियाकत पैक्ट के कारण करा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी की कई नीतियों से असहमति निश्चित रूप से थी, और कश्मीर का भी विषय ऐसा ही था। कश्मीर के विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। कश्मीर में जो धारा 370 बनाई थी, ऐसा लगता था कि एक देश में दो निशान और दो विधान नहीं हो सकते, क्योंकि आजादी के बाद भारत को हमने एक राष्ट्र के या एक देश के रूप में हमने विकसित करने का संकल्प किया था, और इसलिए 370 को हटाना ये जनसंघ का पहला प्रस्ताव था। और 1952 के चुनाव के बाद जब कानपुर में पहला अधिवेशन हुआ तो जनसंघ में प्रस्ताव पारित किया गया। अब चूंकि जनसंघ ने कोई प्रस्ताव और संकल्प पारित किया था
और उसके लिए कोई कार्यक्रम करना आवश्यकता है। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर जाकर के कूच करने का कार्यक्रम करने का फैसला किया। और हमारी पुस्तक में ये भी लिखा गया है कि जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का देहांत हुआ और बाद में नेहरू जी का उनकी माताजी योगमाया देवी के पास पत्र गया और उन्होंने जो जवाब दिया, वो देखने लायक है कि तत्कालीन सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े नेतृत्व के प्रति किस प्रकार असंवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही थी। दूसरा विषय जो है, जहाँ तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के निधन होने के बाद निश्चित रूप से एक ऐसी परिस्थिति और एक ऐसा समय आया जब जनसंघ में बाकी सब लोग कार्यकर्ता स्तर के और नौजवान लोग थे। ऐसे में पार्टी को एक राजनीतिक आधार देना, पार्टी की एक कार्य पद्धति विकसित करना, पार्टी में डेडिकेटेड लोगों को आगे बढ़ाना, इसमें निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आइडियोलॉजिकल स्तर पे भी, जिसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं या एकात्म मानववाद का विषय देते हैं, तो तो जो दर्शन उन्होंने दिया, तो जनसंघ का एक तरीके से आइडियोलॉजिकल भाग, जनसंघ की कार्य पद्धति का भाग, जनसंघ के नेतृत्व को डेवलप करने का कार्य, ये सब पंडित दीनदयाल जी के नेतृत्व में 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का देहांत होने के बाद लगातार लगभग 14 साल तक उन्होंने कहा। ये जनसंघ के लिए एक और दुर्भाग्य का विषय रहा कि कालीकट अधिवेशन में जो पंडित दीनदयाल जी जब अध्यक्ष बने, उसके कुछ ही समय बाद उनका भी देहांत हुआ और उसके बाद फिर जनसंघ की यात्रा श्री अटल जी और श्री अडवाणी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी। बुक के अंदर पढ़ते वक्त एक शब्द है अनटचेबल, आपने यूज़ किया है कंसिस्टेंटली कि किसी तरह से भारतीय जनसंघ और पार्टी भी फॉर लॉन्ग टाइम वो चेंज ज़रूर आया है पिछले 7 दशकों के अंदर, पर अनटचेबल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। मैं चाहता हूँ इसके बारे में भी आप थोड़ा एक बार बताएं कि कैसे वो आइडिया के अनटचेबल बना हुआ। गांधी जी ने जब देश की आजादी का आए थे तो उन्होंने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी थी। भारत के इथोस, भारत के वैल्यूज, भारत की कल्चरल विशेषताएं, उनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और इसलिए गांधी जी जब अपने दिन की शुरुआत भी करते थे तो एक नरसिंह मेहता के भजन वैष्णव जन कहते थे। तो अब सुबह करके कोई नेता अगर वैष्णव अपनी आस्था का भजन गाएगा तो वो तो अपने आस्था और फेथ का विषय हुआ। तो जनसंघ ने भी अपने आइडियोलॉजिकल विषयों में यही रखा कि हमें उस कल्चरल आइडेंटिटी को, अपने अपनी फेथ की स्वतंत्रता को मानते हुए भारत की कल्चरल आइडेंटिटी को आगे बढ़ाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस विषय को कम्युनल कह के पेंट किया गया और बार बार एक ऐसा दौर आया जब 67 में राज्यों में संवित सरकार का विषय था तो जनसंघ का सहयोग लिया गया, पर जब जनसंघ को छोड़ना हुआ तो कम्युनल कह दिया गया। जब जनता पार्टी बनी तो जनसंघ ने अपना जो विलय है वो जनता पार्टी के अंतर्गत करा, पर बाद में हुआ क्या कि जनता पार्टी के भी एक एक भाग ने जनसंघ को वापस से कम्युनल कहा और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। इवन वीपी सिंह जी के समय में भी जब समर्थन लेना था तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लिया गया। तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से जनसंघ को एक गलत तरीके से पेंट किया, तो हमने अपनी पुस्तक में लिखा और पंडित दीनदयाल जी ने भी कहा था कि भारत में हम अनटचेबिलिटी के सोशल स्टिग्मा को तो समाप्त कर रहे हैं, पर जो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी है, जिसके कारण बार बार जनसंघ के ऊपर क्वेश्चन किया जाने लगा, उसका जनसंघ को सामना करना पड़ा। और इसलिए हमारा मानना है कि राजनीति में किसी भी राजनीतिक विचार से अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए और जनसंघ को गलत तरीके से, बाद में भाजपा को भी कम्युनल कह के गलत तरीके से पेंट किया गया। आवाज नहीं आ रही है मेरे पास अभी। अभी क्लियर है? क्या भी ठीक जी। सो मेरा अगला जो प्रश्न है, आ रही है आवाज? मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी जी। सो अगला प्रश्न है जो ऑर्गेनाइजेशन पे होने वाला है, पर मैं उससे पहले आपकी तरफ से जानना चाहूँगा। इला मैम ने तो एड्रेस कर ही दिया है कि ये जुगलबंदी कैसे बनी। आपका क्या उसके अंदर, व्हाट इज़ योर से इन इट, कि कैसे ये हुआ कि एक पॉलिसी पर्सन और एक हार्डकोर ऑर्गेनाइजेशंस मैन जिन्होंने पिछले 15-20 सालों के अंदर पार्टी के अंदर जो योगदान दिया है अनपैरेलल्ड है, तो ये कोलिशन कैसे हुआ? नहीं, ये कॉलिशन
कहना तो ऐसा है, मैं नहीं मानता हूँ कि, लेकिन ये एक हमारा परस्पर बातचीत के आधार पे, डिस्कशन के आधार पे, एक साथ करने का, कार्य साथ करने का, या एक विषय पे रिसर्च करने का हुआ। तो हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हमारा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन में बहुत सारे विषयों पे निश्चित रूप से जहाँ पर इलाजी के वक्तव्य परिस्थितियों के हिसाब से सही थे, उसको मैंने स्वीकार किया। जहाँ पर इलाजी को लगा कि मैं उनको एक रीजनिंग के साथ विषय को क्लियर कर पाया, उन विषयों को उन्होंने स्वीकार किया। तो ये हमारा कलेक्टिव वर्क है। इसको कोलिशन कहना तो है कि दो अलग-अलग पार्टी है। हम दोनों ने इकट्ठा परस्पर विचार करके राजनीतिक परिस्थितियों में जनसंघ की यात्रा क्या रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कैसे रहा, फिर सरकार में आने के बाद पॉलिसी एनालिसिस कैसे हुआ, ये हमारा कलेक्टिव वर्क हुआ है। पेज नंबर 163 है किताब का, जो हार्ड बाउंड कॉपी है मेरे पास, उसके अंदर से कोट करता हूँ। द नेशनल काउंसिल मीटिंग ऑफ 2014 हेल्ड इन न्यू दिल्ली सेड, there is a lesson for the organization in these elections. The wave of popular leader and sentiments gets inverted into votes where the organization is strong and the local leadership is established. That is why it is essential to strengthen the organization in all the states of the country, and that is our responsibility. बहुत लोग हैं जो कंसिस्टेंटली जानना चाहते हैं, डाउट्स भी रहते हैं मन में, पर हर किसी को पता है आज के टाइम पर जो भी सामाजिक डिस्कोर्स, पब्लिक डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इन्वॉल्व हैं, कि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व होना या ऑर्गेनाइजेशन बनना, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है जो पिछले कई दशकों से कैसे इवॉल्व हुआ, उसके पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके क्या कमेंट्स हैं। देखिए, 2014 में एक राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी और 10 साल हमारे देश में यूपीए का शासन इस प्रकार से चला कि शासन जो है अबव कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने चलाया है। मतलब मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट को जिन्होंने ओथ नहीं ली थी, जिन्होंने इस संविधान में किसी प्रकार की शपथ नहीं ली थी, उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने चलाया, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी किसी भी प्रकार से किसी ओथ के अंतर्गत नहीं थी और पार्लियामेंट जैसी संस्था के आगे अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल उस समय जो कांग्रेस की चली थी, उसके कारण पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, उसके कारण करप्शन हुआ और उसके कारण हमारा देश बनाना रिपब्लिक कहलाने लगा। ऐसे में 2014 में लोगों के मन में इस बात की पूरी आकांक्षा थी कि देश में एक सशक्त विकल्प और एक पॉलिसी ड्रिवन सरकार आनी चाहिए, जो जनता के मैंडेट से चुनी हुई सरकार के द्वारा ही लोगों को देश का शासन चलाना चाहिए। संविधान से अलग अबव कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कोई नहीं हो सकती। तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 में लोगों ने चुना, पर ये चुनने का भाव तो पूरे देश में था। तो आप देखेंगे उस समय बंगाल में हमारे केवल 2 ही लोग जीते, उड़ीसा में हमारे कोई सफलता नहीं मिली, तेलंगाना में हमें कोई सफलता नहीं मिली। तो ये भी देखा गया कि देश के कुछ भाग ऐसे थे जहां पर लोगों के मन में तो परिवर्तन का भाव था, लेकिन भाजपा को इस कारण से नहीं चुन पाए कि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं था। और इसलिए इस पुस्तक में भी हमने लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हमारे तत्कालीन अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने 120 सीटों का चयन किया, जिसको 2019 में हमने अपनी संगठनात्मक ताकत को बढ़ाया। तो सदस्यता अभियान, संपर्क अभियान, प्रशिक्षण अभियान के द्वारा पार्टी ने अपने आप को तो जोड़ा ही, पर 120 सीटों पे कंसंट्रेट भी किया। और उसमें अगर आप देखेंगे कि जैसे अमेठी सीट है, कभी कांग्रेस नहीं हारी, गुना सीट कभी कांग्रेस का सिंबल नहीं हारा था, बंगाल में कभी बीजेपी 2 से ज्यादा सीटों पे नहीं बढ़ी, उड़ीसा में बीजेपी लंबी सीटों पे नहीं बढ़ी, तेलंगाना में नहीं बढ़ी। और उन 120 सीटों को, रोहतक की सीट हरियाणा की ऐसी सीट थी जहाँ पे कांग्रेस के लगातार जीते रहे, तो 120 सीटों पे इसके साथ साथ पार्टी ने अपने संगठनात्मक आधार की ओर भी ध्यान दिया। और आपने देखा होगा कि 2019 में उन सीटों पे काफी सफलता भी आई। तो लोगों के मन में जो आकांक्षा होती है, उसके बाद भी किसी भी पार्टी को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपना विकास करना होता है। यही कारण है कि बीजेपी को 2019 में उड़ीसा में, बंगाल में, तेलंगाना में ऐसी कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर भी सफलता प्राप्त हुई। जी, यही कहने का भाव 2014 में था। जी। तो इला मैम आपसे कि 80s के अंदर, जैसे 80s का दशक स्टार्ट हुआ था, तो भारतीय जनसंघ उससे पहले विलय कर चुका था जनता पार्टी के अंदर, और उसके बाद बीजेपी बनी। पार्टी ने अगले 20 साल के अंदर जो चेंज आया है, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फेज़ जो है वो अर्ली 1990s का है। अर्ली 1990s का जो फेज़ है वो सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, इस देश के लिए भी बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे आज के जो सामाजिक ढांचा है, मिडिल क्लास का राइज होना, इकोनॉमी के अंदर इतना ज़्यादा मनी पंप होना, कैपिटल आना,
FDI इन्फ्लोज होने, सो ऑल दोज थिंग्स, वो जो ट्रांजिशन आया वो एक फेज़ का है। आप, क्योंकि आपने बुक के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात की है, मैं चाहता हूँ कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आप बात करें, और चाहूँगा कि उसको आप कनेक्ट कीजिए कि कैसे फिर उसके बाद 10 साल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, और वाजपेयी जी की सरकार ने कैसे उस काम को कंटिन्यू किया। तो जैसे हमने पहले बात की कि जो मॉडल था 60s 70s और 80s में भी जो मॉडल चला इकोनॉमी का, वो प्लान्ड इकोनॉमी का मॉडल था, और उस मॉडल में रेस्ट्रिक्शंस थी कि प्राइवेट सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर सकता है, कितना इंपोर्ट कर सकता है। तो ये दो चीज़ों पे पर्टिकुलरली इंडस्ट्री एंड ट्रेड पे, कि प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट में आके, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, कि हम इतना इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसको इंपोर्ट लाइसेंस कहते थे, और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से कि अगर एक फैक्ट्री सेटअप करनी है तो आपके पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट तक आप आएंगे लाइसेंस लेने के लिए, उसको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कहते थे। ये पूरे प्लानिंग, जब सरकार ये कहती है कि हम 5 साल में इतना प्रोड्यूस करेंगे, तो ये उसका क्रिटिकल हिस्सा था। 91 में जो रिफॉर्म हुए, क्योंकि हम वो मॉडल चल नहीं पाया, फेलियर हुआ, फेलियर में हमने लोन लिए, लोन के प्रोसेस में सरकार ने कुछ कंडीशनैलिटीज़ भी मानी, कुछ इंटरनली भी ये सिचुएशन आ गई थी कि अब ये चल नहीं सकता है। तो नरसिम्हा राव सरकार ने 2 मेन चीज़ें चेंज की, और वो ये कि इंडस्ट्री के लिए अब लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, और ट्रेड के लिए, इंपोर्ट के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। अब उसका अर्थ ये होता है कि देश में आप कहीं भी जाके इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आपको किसी को पैसे नहीं खिलाने, आपको उस सिस्टम में ये नहीं है कि अच्छा टोटल हम प्रोडक्शन 100 कर सकते हैं तो हम 2 लाइसेंस सिर्फ दे सकते हैं। तो वो सिस्टम जब ब्रेक होता है, तो उस सिस्टम के बाद ऑलमोस्ट हर स्टेट ये कह सकती है आइए आप यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। तो उससे स्टेट्स में एट द ग्राउंड लेवल ये चेंज आना शुरू हो गया, और उसके बाद ही हम देखते हैं कि ग्रोथ पिकअप होती है, और मिडिल क्लास भी ग्रो करती है उसके बाद। पर वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो गया जब तक आप 99 के पीरियड तक आते हैं। इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, आई वोंट गो इनटू देम, एशियन क्राइसिस, आई वोंट गो इनटू ऑल द फैक्टर्स, बट काफ़ी वो एक मिसमैनेजमेंट ऑल्सो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो ये नहीं कि किसी की कोई हम ब्लेम कर रहे हैं, पर काफ़ी इकोनॉमिक मैक्रो पॉलिसी मिसमैनेजमेंट हुआ, बट वो सब की वजह से वो काफ़ी स्लो डाउन आ गया था। तो जब 99 में वाजपेयी जी की सरकार आती है, तो उसमें काफ़ी एम्फेसिस आता है कि ग्रोथ को हमें रिवाइव करना है। और जब आप ये देखते हैं कि ग्रोथ को रिवाइव करना है, तो उसके लिए क्यों, 2 सवाल आएंगे, आपको क्यों रिवाइव करना है, जवाब कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप करना है। हमेशा से राइट 50s से आप देखेंगे, चाहे जनसंघ के या बीजेपी के ऑब्जेक्टिव क्या थे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। तो उसके लिए आप ग्रोथ रिवाइव करेंगे, जॉब्स देने के लिए आप ग्रोथ रिवाइव करेंगे, एंड इन एडिशन यू वांट टू रीच द लास्ट मैन इन द माइल। उसको करने के लिए और ग्रोथ रिवाइव करने के लिए आप कई पॉलिसी चेंजेस आए। सो फॉर एग्जांपल, पहली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई, विच इज़ टू रीच रिमोट एरियाज, along with which you also did the NHAI, because you need those big roads, you need the golden quadrilateral, you need institutional arrangements, क्योंकि पहले तो CPWT के तरह के वो रोड बनाते थे, उससे नहीं बन रहे थे रोड, तो NHAI सेटअप किया गया। टेलीकॉम नहीं था, MTNL और वो था जिसको कि वो कहते थे यूनिवर्सली हम पैसे देते हैं, कुछ उनके पास एक पैसे थे कि फैलाओ टेलीकॉम देश भर में, पर वो नहीं होता था। तो टेलीकॉम पॉलिसी चेंज की गई, टेलीकॉम में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आया। तो फाउंडेशंस फॉर ग्रोथ वर लेड इन दैट पीरियड, क्योंकि इवन दो 91 में रिफॉर्म हो गया था, पर वो सब स्लो डाउन हो गया था। And they were done with the objective that it has to then later reach out to people. So what you are essentially saying is कि early 1990s के अंदर जो reforms आए थे, उसको major flip जो मिला है, वो वाजपेयी सरकार ने उन 5 सालों में मिला। जी।
मंत्री जी, आपसे ये सवाल है कि क्योंकि अर्ली 1990s के अंदर हम ये बात कर रहे हैं, अर्ली 1990s के अंदर एक और कॉन्वर्सेशन के अंदर एक और मुद्दा आता है जो जिसके अंदर पहले मैं चाहूँगा कि आप पार्टी का जो यात्रा करवाने वाला जो एक ट्रेडिशन है जो कंसिस्टेंटली चला आ रहा है और जिसने रीच आउट पार्टी को रीच आउट करने में अलग अलग घटकों के अलग अलग लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद की है, यात्रा के बारे में, और फिर कैसे मशहूर यात्रा है अडवाणी जी की रथ यात्रा उसके बारे में। और आपने एक पार्ट लिखा है, एंड आई विल कोट यू, page number 68 in the book. It says, in a conversation with the author Bhupendra Yadav, Arun Jaitley once said that when the Babri structure was demolished, there was no scope for a decision on how to react. When the group of car sevaks started marching, the leaders present at the side urged them to stop. H.V. Sheshadri ji, the Joint General Secretary, in fact, appealed them to stop in many languages. सर, मैं चाहूँगा कि इस बात को थोड़ा आप एक्सपैंड कीजिए, क्योंकि देयर आर मेनी काउंटर ओपिनियंस एंड ओपिनियंस ऑन दिस सब्जेक्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि बीजेपी ने 84 के बाद क्या एक तरह था है कि गांधीनगर में जो अधिवेशन हुआ उस समय अटल जी ने कहा कि भाई हम इतनी कम सीटें क्यों लाए, क्या लोग दीपक के निशान को हमसे चाहते थे या कुछ हमारा आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन के विषय को चाहते थे। तब हमने पुस्तक में भी लिखा है कि कृष्णलाल शर्मा जी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी, पार्टी में मोर्चे और सेल बनाने का निर्णय हुआ। उसके बाद फिर ये उस समय आपने ध्यान किया होगा कि पूरे देश भर में एक गंगा यात्रा निकली थी, एकात्मता यात्रा निकली थी और पूरे देश में ये था कि जिस प्रकार से माइनॉरिटीज्म के विषय पे कांग्रेस ने लोगों को डिवाइड करने का काम किया, उस पे एक हम लोगों को कोई ना कोई नेशनल अवेकनिंग प्रोग्राम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर में एक प्रस्ताव पास किया कि राम जन्मभूमि पर हमारे सांस्कृतिक गौरव के लिए राम मंदिर बनना चाहिए। तब ये जो राम मंदिर का विषय आया तो इसको लोगों तक कैसे लेके जाओ, उससे पहले एक एकात्मता यात्रा भी हुई थी। तो ये हुआ कि लोगों तक जाने के लिए एक बड़ा यात्रा का प्रोग्राम किया जाए जिससे कि इस विषय को गांव-गांव तक ले जाया जा सके। और अडवाणी जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि यात्रा हुई और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा थी। और ये विषय ध्यान में आया कि दूर-दूर तक गाँव तक जब जाते हैं, तैयारी होती है, लोगों में मिलते हैं, तो उससे फिर लोगों के बीच में विषय रखने का, बात रखने का, संवाद करने का एक बड़ा अवसर पार्टी के पास उपलब्ध होता है। और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने एकात्मता यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर के लिए एकता यात्रा भी करी और फिर अडवाणी जी ने स्वराज यात्रा भी करी। तो इस प्रकार से बीजेपी ने अपनी कार्यपद्धति में एक मास मूवमेंट या मास कॉन्टेक्ट का एक बड़ा कार्यक्रम यात्रा का भी किया। दूसरा जो एक विषय है, जो बाबरी मस्जिद का जो ढहना था, ये निश्चित रूप से लोगों की उस समय की त्वरित प्रतिक्रिया थी। और हाँ, उस त्वरित क्योंकि उस समय वहाँ पर कल्याण सिंह जी की सरकार थी और कल्याण सिंह जी की सरकार के रहते हुए वो जो विषय आया था, तो निश्चित रूप से उस समय चूंकि अचानक से लगने लगा कि कार सेवकों ने उस विषय के को अपने हाथ में लिया, तो शेषाद्री जी ने भी बार-बार अपील करी और अरुण जी का भी कहना था कि ये इतना स्पॉन्टेनियस था कि एकदम समझ में नहीं आ रहा था इस पे रिएक्शन किस प्रकार से दिया जाए। पुस्तक में इस बात का भी उल्लेख है, बाद में कांग्रेस के द्वारा लिब्रान कमीशन को भी बनाया गया और लिब्रान कमीशन में माननीय राजनाथ जी ने लोकसभा में और अरुण जी ने राज्यसभा में भाषण दिए और हमारे पे जो जिस प्रकार के आरोप लगे, आखिर कांग्रेस के समय में कमीशन बना और कांग्रेस में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तभी उसकी रिपोर्ट आई, जो अपने आप में एक इस बात को दर्शाती कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी हमारी विचारधारा के ऊपर गलत आरोप लगता है। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, और बहुत लोग इससे पहले समझ नहीं पाते, ये क्वेश्चन पब्लिक लाइफ के अंदर कॉन्स्टेंटली रेज होता रहता है। जो चीज़ फंडामेंटली आपकी पुस्तक एड्रेस करती है कि संघ का और पार्टी का क्या रिलेशन है, अथवा संघ परिवार के, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या फिर कोई और संस्था हो, उसका पार्टी के साथ क्या रिलेशन रहता है, क्या टू एंड फ्रो रहता है, कैसे संघ से लोग पार्टी में जाते हैं और कभी कैसे पार्टी से लोग वापस संघ में आ जाते हैं। तो वो जो रिलेशन है, मैं चाहूँगा कि आप सभी दर्शकों के लिए
वो एड्रेस करें कि कैसे पिछले कई दशकों के अंदर वो इस तरह से इवॉल्व हुआ, क्योंकि 50-60s के अंदर ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया था और फिर कैसे ओवर टाइम इवॉल्व हुआ। मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। नहीं, तो ठीक है, बीजेपी में जो संगठन मंत्री होते हैं वो सामान्यतः संघ के प्रचारक रहते हैं। ये इसमें कोई विषय को मतलब कोई, ये तो स्पष्ट विषय है, लेकिन वो बहुत नीति नियम और मर्यादा से रहता है, क्योंकि जब आदमी इस पद पर रहता है तो किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ना, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं रखना, केवल संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए ही काम करने का भाव रहता है। लेकिन जहां तक रिलेशन की बात है, संघ परिवार के रिलेशन को कोट करते हुए हमने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जो विचार परिवार के बड़े आइडियोलॉग रहे हैं, उनके एक वाक्य को कोट कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संघ परिवार के सभी संगठन इंटर रिलेटेड हैं, पर इंटर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक ऐसे, जिसको हम कभी हम परिवार कहते हैं, ऐसे वृहद परिवार है जिसमें सब अपनी अपनी अलग अलग शाखाएं हैं, मतलब अपनी अलग अलग डालियां हैं, लेकिन कोई किसी से एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, क्योंकि एक विचार को लेकर के सब मानते हैं कि भारत का सांस्कृतिक जो परंपरा है उसके आधार पे देश का निर्माण होना चाहिए। लक्ष्य को लेकर भी सब मानते हैं कि भारत एक गौरवशाली देश बनना चाहिए। कार्य पद्धति को लेकर भी सब में एक बात की समानता है कि हमारे एथिक्स, मॉरल और वैल्यूज रहने चाहिए, और दृष्टिकोण को लेकर भी एक समानता है कि आखिर हम डेमोक्रेटिक तरीके से रहने वाले लोग हैं, तो हमें डायनेस्टिक रूल से दूर होकर के भारत को एक लोकतांत्रिक रूप से बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारे विचार परिवारों के भी संगठनों में जो पदाधिकारी बनता है किसी डायनेस्टिक रूल से नहीं बनते हैं, लेकिन सब सारे संगठन अपने निर्णय अपने आप अलग अलग लेते हैं, अपनी कार्यपद्धति सबकी अलग अलग है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी अपनी सबकी अलग अलग है। अब भारतीय मजदूर संघ अपना कार्य करता है तो कोई भारतीय जनता पार्टी से आर्थिक सहयोग लेके तो करते नहीं है, वो मजदूरों के क्षेत्र में राष्ट्रीय विचारों को लेकर काम करते हैं। ऐसे जो लघु उद्योग भारती है वो उद्योगपतियों को लेकर के करते थे। अब दोनों कॉन्फ्लिक्ट के क्षेत्र हैं, लेकिन दोनों संगठन कुल मिलाकर एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विषयों को लेकर के काम करते हैं। इसलिए जो आपस के संबंध का है, मैंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की एक लाइन को कोट किया है जिसमें उन्होंने कहा था, हम इंटर रिलेटेड है, हम परस्पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर इंटर डिपेंडेंट नहीं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है। और मुझे लगता है ये जो इन्फ्लुएंस है मॉरल ज्यादा है, ये बंधुत्व का बाउंडिंग है, लेकिन ये फोर्सफुल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अंदर जब इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो एक कॉन्सेप्ट स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है एट लेंथ। मैं चाहूँगा इसके बारे में, बिकॉज यू आर एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एंड यूजुअल जो क्रिटिसिज्म मिलता है स्वदेशी कॉन्सेप्ट को, वो इकोनॉमिस्ट से मिलता है या फाइनेंशियल मार्केट्स एक्सपर्ट से मिल रहा होता है। तो उसके बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है, एंड हाउ डू यू थिंक द पार्टी जस्टिफाइज इट? सर, पहले लेट्स गो टू द कॉन्सेप्ट। स्वदेशी का कॉन्सेप्ट तो गांधी जी के वक्त से, नेशनल मूवमेंट के वक्त से, बहुत वक्त से चला रहा है, और उसमें फंडामेंटली अगर हम सोचें कि ब्रॉडली कंट्री भर में ये कंसेंसस है कि हाँ, हम अपना प्रोडक्शन अपने देश में करना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कोई फंडामेंटल डिफरेंस है बीजेपी की या संघ की या स्वदेशी जो जागरण मंच की, जिस तरह से आई थिंक मीडिया जिस तरह से उसको प्ले कर रहा है, आई डोंट थिंक कोई फंडामेंटल डिफरेंस है कि देश में चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए। डिफरेंसेस स्ट्रैटेजी में आते हैं। डिफरेंसेस स्ट्रैटेजी में इस तरह से आते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 15% FDI आने दो या 25 आने दो, और उसमें भी ज़्यादा यही होता है कि प्रोड्यूस हम यहाँ करेंगे और उसमें कौन सा अरेंजमेंट बेटर है। तो मेरा जो ब्रॉड रीडिंग है, इवन अगर आप 60s और 70s जिसकी हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी और इंपोर्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी में भी तो यही था कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। सो फंडामेंटली इसकी जो गांधी जी और उनकी राइटिंग्स में और जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम से सेंटिमेंट आ रहा है, वही सेंटिमेंट ब्रॉड टर्म्स में आज भी है। स्ट्रेटेजिकली बीजेपी ने इंडिया ग्लोबल प्रोडक्शन का भी पार्ट हो और प्राइड से हो,
और ये नहीं कि हम अपनी इंडस्ट्री ये जो फीलिंग है कि हम किसी से कम रहें, पीछे रहें, वो ना हो। हम एक प्राइड से वर्ल्ड का, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का, वर्ल्ड का पार्ट रहें। अगर आप ये देखें कि पहली बार कब इंडियन कंपनीज को बाहर जाने दिया गया, तो वो था वाजपेयी के टाइम में, जब आउटबाउंड एफडीआई खोला गया कि हम once we go out into the world, we are today among the best. We are among the top companies. तो वो जो एक फियर था ना कि हम ग्लोबल से इंटरैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम somehow inferior हैं, या हम ख़त्म हो जाएंगे, या हम रिस्क पे हैं कि हम ख़त्म हो जाएंगे अगर हम अपने को एक्सपोज करेंगे, उसको काउंटर करते हुए इनफैक्ट अलाउ किया, जाइए आप बाहर जाके इन्वेस्ट कीजिए, आप बाहर कंपनीज खरीदिए, एंड इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी. सो दैट इज लुकिंग आउटवर्ड, लुकिंग ग्लोबल, while at the same time with great, you know, pride, effort, we want to participate and be part of the world and the world economy. And whether we want to produce at home, whether we want to produce local, sustainable, whether we want to produce small, organic, niche, I think it's all part of that outlook. जी, जैसे लाल किले के परिसर से प्रधानमंत्री जी ने बोला था कम मेक इन इंडिया, उसी कंटिन्यूएशन में सर, आपने पुस्तक के अंदर अलग अलग तरह से और अलग अलग सेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी के जो थॉट लीडर्स रहे हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उन सब की जर्नी भी आपने डिस्क्राइब की है अच्छे से. मैं चाहूँगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जर्नी को, जो ऑर्गेनाइजेशन में उनका रोल रहा है और जो जर्नी रही है उनकी, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं. बहुत अच्छा लर्निंग लेसन भी होगा, जो उभरते हुए नेता हैं या जिनकी आकांक्षाएं हैं पब्लिक लाइफ में आए, उनके लिए भी एक लेसन होगा, और अदरवाइज एक लर्निंग लेसन होगा उनकी जर्नी के बारे में. देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि पार्टी में समय समय पे नए नेतृत्व का इंडक्शन होता है. 80 से 84 का वो दशक था जब भारतीय जनता पार्टी बनी, और 84 में जब 2 सीटें आई, तो उस समय काफी नए नेता पार्टी के अंतर्गत आए. उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात में संगठन मंत्री के रूप में पार्टी में आए, और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक सफलता को भी हम कह सकते हैं कि 84 में जब एक तरीके से पूरे देश में एक निराशा का वातावरण था, और अहमदाबाद जो कांग्रेस का एक बहुत मजबूत गढ़ होता था, वहां का नगर निगम का चुनाव जैसे चुनाव को सबसे पहले उन्होंने बहुत ही राजनीतिक कुशलता के साथ उसको बांधने का प्रयास किया, और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली, और वहां से भारतीय जनता पार्टी का एक टर्निंग पॉइंट आया. फिर चाहे राम रथ यात्रा को गुजरात में प्रारंभ करवाने का विषय हो, और चाहे संगठन के विषयों का और बातों का विस्तार करना, और गुजरात में फिर उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1992 में आई, उसके बाद से कभी भारतीय जनता पार्टी वहां से गई नहीं. लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में शासन कर रही है, जो ये दिखाता है कि एक कुशल नेतृत्व में हम किस प्रकार से लोगों की नीति और लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए लोगों के साथ लगातार कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ विकास हम कर सकते हैं. एक ऐसा भी समय आया जब उन्होंने गुजरात में जिस प्रकार से कार सेवकों की ट्रेन को जलाया गया, उसकी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन 24 घंटे के अंतर्गत ही आर्मी को बुला करके उसको कंट्रोल करने का काम किया, और कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके तत्कालीन गुजरात सरकार और मुख्यमंत्री को परेशान करने का प्रयास किया. लेकिन उन सब कुचक्रों को तोड़ते हुए उन्होंने अल्टीमेटली धैर्य के साथ अपने गवर्नेंस के मॉडल को भी आगे बढ़ाया, और कांग्रेस के कुचक्रों का भी सामना किया, और उनका जो एक काम करने का तरीका, जन भागीदारी की सरकार, इसलिए गुजरात में भी बाल शिक्षा के लिए कि हर एमएलए गर्मियों के दिनों में जाते थे और बच्चों को स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए प्रेरित करते थे. ऐसा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी चलाया. हमने लिखा है किस प्रकार से ट्राइबल क्षेत्रों के भी जीवन में परिवर्तन करने का उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, और गुजरात की जो सरकार का एक सफलता का जो मॉडल था, उसी के लिए लोगों ने उस वैक्यूम में उनको नेतृत्व के रूप में चुना. और 2014 में सरकार में आने के बाद उन्होंने सरकार की गरीब कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाया, जिसको इला जी ने भी कई इंटरव्यूज में बहुत अच्छे तरीके से एलोबरेट भी किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द कॉमन मैन विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी हर्डल, उन्होंने पूरा उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म और पॉलिसी के लिए उन्होंने निर्णय करा. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
मैं सच कहूँ तो राजनीति में एक ऐसे नेता हैं जो बहुत ही अपने व्यक्तिगत जीवन में जिन्होंने एक कठोर साधना करी है, सार्वजनिक जीवन के मानकों में एक व्यक्ति को जिस प्रकार से त्याग संयम करते हुए लोगों के हित में परोपकारी जीवन को करना चाहिए, और विजन की दृष्टि से भी। मैं तो आज पर्यावरण मंत्री हूँ और हमने कई विषयों पे देखा भी है कि जब पूरी दुनिया जलवायु के बारे में सोच रही थी, तब उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए अपने यहाँ पे क्लाइमेट डिवीजन बनाया, जो पहला भारत में भी कोई ऐसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी नहीं सोचा था। और उसी समय उन्होंने कन्वीनियंट एक्शन जैसी किताब लिखी, और बाद में आज जलवायु परिवर्तन और के मामले में जो ग्लासगो में उन्होंने पंचामृत का विषय दिया, ये इस बात को दर्शाता है कि एक दूरदर्शी नेतृत्व अपने जन भागीदारी को साथ रखते हुए, संगठन कौशल को रखते हुए, लोगों के लिए लोक कल्याणकारी राज्य चला करके लगातार निरंतर जनादेश को लेते हुए शासन में एक कर्मयोगी की तरह से काम कर सकता है। मुझे लगता है ये सब युवाओं के लिए बड़ा संदेश है। जी। और जब, क्योंकि आपको अभी आराम से 1.5 दशक के पास हो चुका है पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स पर, 1.5-2 दशक के पास, और जो आपने न्यू यंग लीडर्स को पार्टी ने कैसे टाइम टू टाइम इंटीग्रेट किया, उसके अंदर एक नाम आपका भी आता है। 2000 आपने एक चैप्टर है द रोड टू रिसर्जेंस, विच इज़ 2009 टू 2014, और उस टाइम पर मैं चाहूँगा कि इन दैट रन अप टू इलेक्शंस जो बहुत सारी चीज़ें पार्टी ने की, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमारे दर्शकों को कि वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर और चीज़ें क्या होती, किससे कहानियाँ कुछ शेयर कीजिएगा, क्योंकि पब्लिक मेमोरी दे से इज शॉर्ट। तो 2014 के अंदर जो लहर आई थी वो विदाउट अ डाउट बहुत बड़ी लहर थी, सुनामी इन इट्स ओन वे, एंड उसके अंदर वो करने के पीछे और उसकी सफलता के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन का और अलग अलग इनिशिएटिव जो पार्टी ने लिए थे उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। तो मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए 2014 में चुनाव हम लोग निश्चित रूप से कांग्रेस से 8 सीटें कम लाए और हम सरकार नहीं बना पाए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने 2004 के बाद चुनाव हुए तो कर्नाटक में, पंजाब जैसे राज्यों में सफलता प्राप्त करी। लेकिन जिन भी कारणों से कुछ-कुछ विषयों से पार्टी में विषय और आते रहे, लेकिन 2009 के चुनाव में तत्कालीन सरकार भ्रष्टाचार पे आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन 2009 का चुनाव हारने के बाद पार्टी में तय हुआ कि एक नई नेतृत्व और टीम को खड़ा किया जाए, और माननीय नितिन गडकरी जी पार्टी के एक एकदम युवा, उस समय मतलब अपेक्षाकृत जितने अध्यक्षों की उम्र है उस हिसाब से बहुत अच्छे युवा पार्टी के अध्यक्ष बने, और एक नई टीम आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी उस समय हिमाचल सरकार में मंत्री थे, उन्होंने मंत्री पद से रिजाइन दिया। राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आया रविशंकर जी, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आया निर्मला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आई स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आई महिला मोर्चे की पीयूष गोयल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में आया मैं भी उसमें राष्ट्रीय मंत्री बना, रविशंकर जी राष्ट्रीय महामंत्री। और एक तरीके से आडवाणी जी के साथ जो नई टीम उस समय जुड़ी थी, जिसमें अरुण जी, सुषमा जी और शिवराज जी उस समय मुख्यमंत्री हो गए थे, वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री हो गई थी। लेकिन फिर बाद में वसुंधरा जी राष्ट्रीय महामंत्री भी बनी। तो एक तरीके से एक ये जो पीढ़ी थी, इसके बाद की जो नई पीढ़ी है, जो आज है, उसमें काफ़ी लोग केंद्रीय मंत्री में भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जिनको एक पूरा दशक का समय मिला, जिस दशक में वो काम कर सकते थे। और इसलिए नितिन जी का पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद जब राजनाथ जी अध्यक्ष बने और 2013 में हुआ कि पार्टी को वापस से चुनाव में जाना है, और चुनाव में अगर पार्टी को जाना है तो एक नए संदेश को लेकर के जाना है। और हम हिंदुस्तान में जो पॉलिसी पैरालिसिस हुआ है, जो करप्शन हुआ है, और जो एक अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो एनएससी ने देश को चला करके एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी जो पार्लियामेंट के लिए चाहिए थी, उसको कांग्रेस ने समाप्त करने का काम किया है। ऐसे में अल्टरनेटिव गवर्नेंस का एक अच्छा मॉडल भारत के संविधान के दायरे में हम कैसे दे सकते हैं, तो गोवा के बैठक में माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनका राष्ट्रीय चुनाव कैंपेन के प्रमुख के नाते उनका चुनाव हुआ। राजनाथ जी उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, और 2010 से जो टीम तैयार हुई थी उनको काफी जिम्मेदारी दी गई, और पार्टी एक नई फ्रेश सोच और एक डिटर्मिनेशन के साथ उतरी और 2014 में सफलता पाई। और इसलिए 2014 का जो उसके बाद तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें माननीय अमित शाह जी को राष्ट्रीय परिषद ने अध्यक्ष के रूप में अनुमोदन किया, उसमें हमने उस रेजोल्यूशन का पूरा राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टी के आगे बढ़ने का पूरा विश्लेषण भी इस पुस्तक के अंतर्गत दिया। तो ये जी आपसे प्रश्न है ये
हमने इस बात की डिस्कशन की है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर क्या इकोनॉमिक पॉलिसी रही है। इन कॉन्ट्रास्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर इकोनॉमिक डिसीजंस जो सक्सेसफुल रहे हैं, पॉलिसी डिसीजन और उसके अंदर जो चेंज आया है, मैं चाहूँगा कि उससे पहले जो 10 साल का जो यूपीए 1 और यूपीए 2 गवर्नमेंट है, उसका भी कॉन्ट्रास्ट, उस कॉन्ट्रास्ट को सामने रखते हुए आप बताएंगे थोड़ा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर क्या चेंज आया है और इकोनॉमिक पैरामीटर्स के अंदर कैसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका ये सवाल है कि यूपीए के पीरियड में क्या हो रहा था। तो पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन, जो चीज़ें प्रॉमिस की गई थी वो लगता था हाँ करेंगे 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 करेंगे, पर इतने वेस्टेड इंटरेस्ट, इतने लोग रोकने वाले थे कि कुछ भी हिलता नहीं था। पता था, एडमिटेड था कि लीकेज हो रही हैं, ज़बरदस्त लीकेजेस हो रही हैं प्रोग्राम्स में, फिर भी आगे नहीं उनको रिफॉर्म नहीं किया जाता था। तो एक सेंस जो इकोनॉमी में था 2011-12 के बाद इन्वेस्टमेंट डाउन जाने लगा क्योंकि लोगों ने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली एक एक्सप्रेशन ऑफ होप होता है, एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिविटी अबाउट द इकोनॉमी होता है कि मैं ये करूँगा तो आगे मेरे को रिटर्न्स मिलेंगे। पर वो एक माहौल ऐसा बन गया कि उसमें इन्वेस्टमेंट 11-12 से एक्चुअली राइट आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से नीचे जाने लगा, और उसको रिवाइव करने के लिए जो पॉलिसी चेंजेस रिक्वायर्ड थे वो करने की सरकार में कोई विलिंगनेस नहीं थी। सरकार का अपना जो डिवीज़न था, कांग्रेस का एक हेड ऑफ गवर्नमेंट एक तरफ, एक्चुअल हेड ऑफ गवर्नमेंट एक तरफ, उस वजह से भी पर्टिकुलरली जो सेकेंड फेज़ था 2009 के बाद ऑलमोस्ट कुछ चेंजेस नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ द कंप्लीट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तो हमने इसको डील ज़्यादा नहीं किया है, बट सिंपली थोड़ा पॉइंट किया है इस इशू की तरफ, बट क्योंकि आप ये सवाल पूछ रहे हैं। अब इसके बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो सबसे पहले एम्फेसिस आया ऑन सबसे पहला एम्फेसिस, जो मैं उस समय मिनिस्ट्री में थी, तो सबसे पहला एम्फेसिस जो देखने को मिला वो था कि लोगों का पैसा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इतनी लीकेजेस हो रही हैं, एडमिटेड है कि 85, राजीव गांधी ने एडमिट किया कि 85% लीकेज हो रही हैं, जो भी उसके एस्टिमेट्स हों, बट उनको इमीडिएटली सबसे फर्स्ट अभियान जो चला वो जनधन बैंक अकाउंट्स का, कि उसके बाद आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे फिर आप उनको रीच आउट कर पाएंगे लोगों को। बहुत एम्फेसिस गवर्नेंस पे आया, स्वच्छ भारत अभियान जो चला वो तभी शुरू किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलपीजी सब्सिडी का, जो कि एक बहुत बड़ी एनॉमली चल रही थी कि आपने सब इतना सारा सब्सिडी का खर्चा हो रहा है और वो जा रहा है मिडिल क्लास को या वेल ऑफ को, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको, तो वो गिव इट अप कैंपेन चला और उसके बाद कि कैसे सब्सिडी दी जाए। मोदी जी का ये सवाल आता था, अगर आप उनके पास पॉलिसी प्रपोजल लेके जाते हैं तो, क्योंकि भूपेंद्र जी तो पार्टी की तरफ से उन्होंने बताया, पर मैं आपको सरकार की तरफ से जो एक्सपीरियंस है बताती हूँ। सबसे पहला उनका सवाल आता था कि इसमें आम आदमी को क्या फ़ायदा है। हर पॉलिसी चेंज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि इसमें आम आदमी को क्या फ़ायदा है, तो उसी से सरकार का काम करने का तरीका बदला। और उसके बाद आप जो पीरियड देखेंगे उसमें एक तरफ तो बिग चेंजेस हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट चेंजेस, जिनको कहा जाए कि ऑडेशियस गोल्स, जो बहुत कम गवर्नमेंट्स टेक ऑन करती हैं, जैसे कि जीएसटी। अब जीएसटी जब लाया गया कि एक देश है, इतने साल तक हम डिवाइडेड थे, ऑक्ट्रॉय, स्टेट बॉर्डर, सिटी बॉर्डर, टाउन बॉर्डर पे टैक्स चार्ज करके हमने एक मार्केट नहीं था। While we were one nation, we were not one national market. तो उसको GST was critical to make it a national market.
But it was a change which was going to be difficult. Was not an easy change. और देखा आपने कितनी टीदिंग डिफिकल्टीज हुई, और वो सब टीदिंग डिफिकल्टीज के बावजूद जो है आज उनको एक करके सॉल्व किया है, आज आपका उससे रेवेन्यू बढ़ रहा है, राइट? IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बेसिकली वो क्या था कि अगर पहले इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा लेते थे, वापस नहीं करते थे, अपने रास्ते चले जाते थे, गुड बाय टाटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? अब आप उनसे उनकी ओनरशिप ले लेते हैं IBC लाने के बाद। तो ये चेंजेस जो कि बहुत बिग चेंजेस थे, डिफ़िकल्ट चेंजेस थे, एग्जिस्टिंग स्टेटस को ब्रेक करते थे, एग्जिस्टिंग वेस्टेड इंटरेस्ट को ब्रेक करते थे। ये चेंजेस UPA सरकार में नहीं हुए थे। ये चेंजेस ये मोदी लेकर आए। तो जैसे आपने इकोनॉमी पे बताया, मेरा प्रश्न आपसे भूपेंद्र जी कि 2014 की जो जीत है वो एक कंसिस्टेंट एफर्ट चल रहा था कई दशकों से कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंडर और एक पूर्ण बहुमत की नॉन कांग्रेस ऑल्टरनेटिव इस देश में आए, जो 2014 में आया। आपने अपनी किताब के अंदर 159 पेज पर ये लिखा है, द कांग्रेस एज एन इंस्टीट्यूशन वॉज ब्रेकिंग डाउन, एंड ये हमने उस फेज के अंदर देखा। मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे नॉन कांग्रेस ऑल्टरनेटिव एक चाह रहे थे एंड उसका फिर फाइनल कल्मिनेशन 2014 के अंदर हुआ। देखिए, कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ी बात हुई कि कांग्रेस ने अपने आप को एक डेमोक्रेटिक पार्टी से डायनेस्टिक पार्टी में बदल दिया। और जब आप डेमोक्रेसी से डायनेस्टी की ओर चले जाते हैं तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि चीजों में जो सृजनात्मकता होती है, चीजों में जो नयापन होता है, चीजों में जो नया चैलेंज होता है, वो अपने आप में सरेंडर हो जाता है। क्योंकि जब आपको पता ही है कि उत्तराधिकारी पहले से तय है तो कोई क्यों मेहनत करेगा। जब आपको पता है कि उत्तराधिकारी पहले से तय है तो फिर क्यों कोई प्रतिभा को आगे बढ़ने देगा। जब आपको पहले से पता है कि उत्तराधिकारी पहले से तय है तो फिर क्यों पार्टिसिपेशन होगा, फिर चाटुकारिता होगी। और चूंकि हमें देश में लंबे समय तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में बढ़ाना है, तो एज ए इंस्टीट्यूशन अपने आप को डेवलप करना है। इसलिए बीजेपी ने कोर कमेटी के कंसेप्ट को अपने आगे बढ़ाया, बीजेपी ने मोर्चे और सेल से अपने आप को आगे बढ़ाया, और साइंटिफिक तरीके से अब IT के रिवॉल्यूशन के बाद हमको एक नए तरीके से लोगों से सामंजस्य स्थापित करना है, तो बीजेपी ने IT जैसे डिपार्टमेंट को अपने आप बनाया। और कार्यकर्ता नई नॉलेज के साथ रहना भी चाहिए, तो बीजेपी ने अपने यहाँ एक लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट बनाया। अब चूंकि कार्यालय चलाने के लिए आपको प्रोफेशनली कुछ चीजों को करना पड़ेगा, तो हर जिले में बीजेपी ने कार्यालय बनाया। एक आम आदमी भी एक अपने आप को पार्टी के साथ जोड़ सके, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके, इसलिए डिजिटली मेंबरशिप से लेके बाकी चीजों को बढ़ाया। तो जब जिसको हम इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उसका सबसे पहला एस्पेक्ट तो डेमोक्रेसी में यही होता है कि डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो। पार्टिसिपेशन का पहला अर्थ होता है कि डायनेस्टी खत्म हो। तो एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए जितनी कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग चाहिए, और उसमें ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीके से डिसीजन मेकिंग चाहिए, तीनों को बीजेपी ने एज ए इंस्टीट्यूशन बढ़ाने का काम किया है। एक कम्युनिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का एक कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट रहता था कंसिस्टेंटली सरकारों में, और उसके साथ साथ उनका इंस्टीट्यूशंस पे भी अच्छा एक होल्ड और कंट्रोल रहता था। बट कंसिस्टेंटली इन द लास्ट 2 decades बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ बीजेपी ऑल्सो वी सी कि कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे कम हुई है। वो ट्रांजिशन को आप कैसे देखते हैं, और उसको आपका उसके लिए क्या, व्हाट इज योर एनालिसिस ऑन दिस ट्रांजिशन? देखिए, आइडियोलॉजिकली जब हम ये कहते हैं कि हम कल्चरली एक देश है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमको स्टिक रह जाएंगे। अगर हम कहेंगे कि ये कल्चरल का अर्थ है कि आपको इसी तरह के कपड़ा पहनना, इसी तरह का खाना खाना, इसी तरीके से सोचना है, तो फिर आप विचार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप कल्चरल पार्ट मानते हैं, तो आपको समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आचरण को, व्यवहार को, विचारों को भी उस समय को लाना होगा। इसलिए ये जो कम्युनिस्ट भी एक तरह का कल्ट बन गया था। कम्युनिस्टों के खत्म होने का एक कारण ये भी है कि वो अपने आप में एक कल्ट बन गए थे।
तो कल्ट बेस्ड सोसाइटी कभी हिंदुस्तान में स्वीकार्य नहीं है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की तरफ से, मैं फिर कोट अनकोट कर रहा हूँ, हम एक कल्ट में रहने वाले देश नहीं है। हमारे यहाँ विचारों की स्वतंत्रता, हमारे यहाँ विचारों का खुलापन, हमारे यहाँ विचार चर्चा होना ये स्वाभाविक है। हमारे यहाँ पे शंकराचार्य जी से लेकर के सब लोगों को अपनी मान्यता के लिए शास्त्रार्थ करना पड़ा है। उस समय के तर्कों के हिसाब से अपने आप को समाज में योग्यता सिद्ध करनी पड़ी है। और शंकराचार्य जी की भी शास्त्रार्थ में जो निर्णय देने वाली थी वो महिला थी। इसलिए ऐसा भी नहीं मानना है कि हमारे यहाँ पे कोई जब जब हमारी सोसाइटी में इस प्रकार की भावना आई, हमने ओपननेस को रोकने का काम किया, हमने महिलाओं को रोकने का काम किया, हमने शिक्षा के प्रति उदासीनता करी, हमने शिक्षा को एक वर्ग तक सीमित कर दिया, तो हमने भी उस दौर में भारत के पतन को देखा है। इसलिए उन्नत और वैभवशाली भारत का जो नया मंत्र है वो विवेकानंद जी के न्यू इंडिया का मंत्र है, जिसमें सोच साइंटिफिक है, व्यवहार सनातनी है, मूल्य पारंपरिक है, लेकिन न्यायपूर्ण सबके लिए है। गरीब, अमीर, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित सब एक समान धरातल पर आकर सब प्रतिभाओं को अवसर मिले। इसी को ही कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं और बीजेपी ने आज के संदर्भ में इसी को ही आगे बढ़ाया। ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मिस्टर मोदीज लीडरशिप फॉर द राइज ऑफ बीजेपी, इन द राइज ऑफ बीजेपी? क्या रहेगा आपका इसमें? बीजेपी के महत्वपूर्ण पड़ाव को आगे बढ़ाना, को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में देने की कल्पना करना और आधुनिक वैश्विक चुनौतियों में एक लाइफ का मंत्र देना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल जो साइंटिफिक है, समय के अनुकूल है, रिलेवेंट है। और सबसे बड़ी बात है, जो एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा भी जो एक अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ता है, सोचता है, बोलता है, उसके मन में मोदी जी को देख करके एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं भी अगर डिटर्मिनेशन के साथ लाइफ करूं तो देश और भारत और लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। मोदी जी का सबसे बड़ा जो योगदान बीजेपी के लिए है कि बीजेपी को एक पैन इंडिया पार्टी के रूप में नहीं बनाया, बीजेपी को एक आइडियोलॉजिकल नहीं, बीजेपी को एक व्यवहारिक रूप से आत्मनिर्भर भारत के लिए डेमोक्रेटिक रूप से एक मजबूत इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम और बड़ा पड़ाव बीजेपी के भी जीवन में मोदी जी के नेतृत्व से आया है। एक और क्वेश्चन है, प्रश्न ये है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव जो क्लियर मैंडेट्स मिले हैं, क्या उसकी वजह से पार्टी का राइज हुआ है? कोई एक टिप्पणी आपकी तरफ से। केवल मैंडेट नहीं, मैंडेट को जिम्मेदारी के साथ निभाना। आपने उनकी कार्यपद्धति को देखा होगा कि शायद परिणाम के अगले दिन से ही वो काम पे लग जाते हैं। तो मैंडेट नहीं, मैंडेट को जिम्मेदारी मान करके हर क्षण उस मैंडेट के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगना, वो भी आने का वही सबसे बड़ा कारण है। और समय का अभाव है, इसलिए मैं धीरे-धीरे बस रैप अप ही करना चाहेंगे। पर जाने से पहले, क्योंकि चुनाव का सीज़न है, आप भी चुनावी यात्रा पे लगे हुए हैं, आप भी प्रवास पे हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत काम किया है कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस काम के बारे में और फिर आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनावों के अंदर क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? पार्टी को सभी पांचों राज्यों में सत्ता मिलने वाली है। लोग पार्टी को आशीर्वाद देने वाले हैं। अभी आज से मैं मणिपुर की यात्रा में हूँ। मेरे को आने में भी इसलिए लेट हुआ कि मैं बहुत आगे की 2-3 इंटीरियर ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा में गया था। जो लोगों का उत्साह, जोश और जज्बा मैंने देखा है। हम सभी राज्यों में सरकार बनाएंगे और मैं मणिपुर में बैठकर कह सकता हूँ, मणिपुर में हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब प्रश्न आए जा रहे हैं। एक और प्रश्न है कि रोल ऑफ ग्लोबल सपोर्ट इन द राइज ऑफ बीजेपी। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड बिफोर वी कंक्लूड द सेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोबल सपोर्ट? इसलिए हम एक सॉवरेन देश में की पार्टी है और हमारी भी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय है। इसलिए हमारे अच्छे काम से लोगों की सद्भावनाएं मिलेगी, उसका स्वागत है और हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे बढ़ाने की है। जी सर, और इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूं
और आप सभी को धन्यवाद करता हूँ और सभी को रेकमेंड करता हूँ कि द राइज ऑफ द बीजेपी, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, authored by Shri Bhupendra Yadav ji and Ma'am Ila Patnaik ji. Do buy the book. I recommend this book to everybody, and I wish you very best, sir and ma'am.